Hello students, as you know, in this chapter of solution, we are studying Raoult's law. राउल्ट्स लॉ में हम कुछ अर्लियर लेक्चर्स भी ले चुके हैं और इससे पहले वी स्टडीड Raoult's law for a solution containing volatile solute. And in this lecture, today we will take up the topic Raoult's law for a solution containing non-volatile solute. तो स्टूडेंट्स होशियार हो जाइए. Raoult's law for a solution containing non-volatile solute. इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में. लेट अस recapitulate few things about it. Non-volatile solute means solute which has no tendency to change to vapors. That is non-volatile solute. If we add some non-volatile solute to a solvent and prepare a solution, what happens to the vapor pressure? जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है. किससे? देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जिसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया था. तो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आती है, वेपर प्रेशर का लोअरिंग हो जाता है जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं. हम डायग्राम के साथ पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. उसमें हमने आपको बताया था कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसके कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्वेंट जो वोलाटाइल है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम होने से सॉल्वेंट का इवेपोरेशन कम होगा, वेपर्स कम बनेंगे और लेस हो जाएगा वेपर प्रेशर. तो ये हम विद डायग्राम्स स्टडी कर चुके हैं और आप पिछले लेक्चर्स ले सकते हैं, वहां उन वीडियोस में स्टडी कर सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं. तो मैं कंक्लूजन लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. Whenever non-volatile solute is added to a pure solvent to make a solution, ऐसा करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर का लोअरिंग होता है, and that's why the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is less than the vapor pressure of the pure solvent used in making that solution. So now let us understand what Raoult's law states about a solution, about the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute. So let us first take the statement and read it from the board. तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखिएगा. Raoult's law for solutions containing non-volatile solute. What is its statement? It states that the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute
a given temperature, constant temperature, is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. मैं एक बार फिर से इसको रीड कर रहा हूं. It states that the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute at a given temperature is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. So let us now study it in detail. तो क्या बात मैंने अभी आपके सामने कही? It's a Raoult's law for a solution containing non-volatile solute. What is its statements? It has various statements. कुछ मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा. It simply states that vapor pressure of a solution containing non-volatile solute at a constant temperature is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. So let us develop its mathematical relations, and so look with concentration at the board. Vapor pressure of a solution. तो स्टूडेंट्स ये PS मैं यूज कर रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड एज पर स्टेटमेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट के लिए मैंने सिंबल यूज किया है A. आप इसको काई A भी बोल सकते हैं और आज की मॉडर्न टर्म्स में हम इसको X भी बोल लेते हैं मोल फ्रैक्शन को. तो ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का. तो यहां से देखिए, सो इट बिकम्स मैथमेटिकली PS वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. नाउ PS equals to K into mole fraction of the solvent. And students, you know, this is K is a constant of proportionality. और लास्ट में हम इसका कुछ वैल्यू बनाएंगे क्या होता है क्या रिलेशन में. सो दिस इज PS equals to K into mole fraction of solvent. Let's suppose this is equation number 2. Sorry, this is equation number 1, and remember K is a constant of proportionality. तो स्टूडेंट अब फिर से एक बार कुछ रिवाइज करना पड़ेगा. मैं होप करता हूं आप यहां देखें. कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is always unity, is always 1 for a binary solution. This is XA mole fraction of solvent. This is XB chi B XB mole fraction of solute. Sum total of mole fraction of solvent and mole fraction of solute for a binary solution is always 1. तो यहां से ही हम कुछ सपोज करेंगे. अब मैंने यहां क्या वैल्यू स्टूडेंट यहां पे ली हुई है, इसको आप यहां पे देखिएगा. इफ काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1, अगर काई ए 1 है तो पढ़ चुके हैं आप, मुझे खुद बताइए. अगर हमारा काई ए का वैल्यू 1 हो, इट मींस दैट हमारा एक्स बी काई बी का वैल्यू उस समय 0 होगा. स्टूडेंट यहां पे फोकस कीजिएगा. अगर हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर 1 है तो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हैज टू बी 0. क्यों? क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का उनका टोटल 1 है. और अगर हमारा एक्स ए ही 1 हो जाएगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी अगर हमारा 0 होगा तभी इन दोनों का सम टोटल आपको 1 मिलेगा. सो इफ यहां पे एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें 1 मिलता है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा 0 होगा. एंड इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0, इसका मीनिंग क्या है कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, इट मींस दैट नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट. व्हाई? बिकॉज XA plus XB is always equal to
1। तो मैं होप करता हूं स्टूडेंट आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी ये दोनों मोल फ्रैक्शंस हैं, इक्वल्स टू 1 फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन। अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 हो जाएगा, अगर एक्स बी 1 है तो एक्स ए 0 हो जाएगा। और जैसा हम यहां सपोज कर रहे हैं, अगर हमारा यहां एक्स ए 1 है, इट मीन्स दैट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, एंड इफ एक्स ए इज 1 फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन, एक्स बी जो होगा दैट हैज टू बी 0। और अगर एक्स बी 0 होता है इसका मतलब सॉल्वेंट प्रेजेंट है लेकिन सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने अज्यूम किया काई ए एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1। इट सिंपली मीन्स सॉल्वेंट प्रेजेंट है लेकिन सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ एक्स ए का वैल्यू 1 सपोज कर लेंगे, यहाँ एक्स ए का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हमें आंसर मिलेगा पी एक्स इक्वल टू के इंटू 1। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू के इंटू 1 एंड Px is the vapor pressure of the solution, and then Ps vapor pressure of the solution is equal to K, and let us suppose this is our equation number 2. तो होप करता हूं अंडरस्टैंड किए होंगे आप। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। Ps vapor pressure of the solution is equal to K into XA, where K is the constant of proportionality. If XA is 1, it means solvent is present but solute is not present. Then substitute the value of XA, which is 1. Substitute the value of XA in this relation. So finally we get vapor pressure of the solution is that Ps is equal to K, and let us suppose this is the equation number 2. Now let us come on this part of the board. हम अपने पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं फॉर राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वहां अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। हमने राउट्स लॉ के एक पीछे टॉपिक में अंडरस्टैंड किया था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। कभी मैं पार्शियल प्रेशर बोलता हूं, कभी मैं सिंपल वेपर प्रेशर बोलता हूं। एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, आप कह सकते हैं ये पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का है। ये पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का है, मीनिंग ये वेपर प्रेशर सॉल्यूट का है। सो as per Raoult's law for a solution containing volatile solute, you studied this relation Ps is equal to Pa plus Pb। लेकिन स्टूडेंट्स हम यहां अज्यूम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1। तो मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं, हमने अगर ये अज्यूम किया है XA मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का 1 है तो फिर XB मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना होगा 0। तो यहां फोकस कीजिएगा, बट व्हेन XB मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अगर क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है या फिर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो वो वेपर में चेंज नहीं होगा। तो जब XA1 है सॉल्वेंट प्रेजेंट है, एट द सेम टाइम XB विल बी 0। XB विल बी 0 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 0 मीन्स सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, और अगर सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है ओके, तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होगा Pb, that will also be 0। और स्टूडेंट अगर Pb 0 है तो इस रिलेशन में अगर Pb 0 हो जाता है तो हमें रिलेशन क्या मिलेगी, Ps इक्वल टू Pa प्लस 0, और फाइनली आपको मिलेगा Ps इक्वल टू Pa। यहां फोकस कीजिएगा, Ps इक्वल टू Pa हो गया, लेकिन हमारे पास Ps इक्वल टू Pa प्लस Pb था। Pb का वैल्यू 0 कैसे हो गया,
अगर काई A1 है, x A1 है तो x B0 होगा, x B0 है तो सॉल्यूट नहीं है, अगर सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो जीरो होगा, अगर सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर जीरो होगा तो जब यहां आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहां जीरो होगा, PS इक्वल टू PA। तो स्टूडेंट यहां फोकस करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन नो सॉल्यूट इज देयर, अगर एक्स भी जीरो है, सॉल्यूट नहीं है, तो फिर अर्लियर टॉपिक के अकॉर्डिंगली अगर सॉल्यूट नहीं है तो आपको अज्यूम करना होगा, अगर स्टूडेंट सॉल्यूट नहीं है तो हमें अज्यूम करना होगा कि ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हो गया। तो यहां देखो, देन PS इक्वल्स टू P नॉट A। अब यहां आपने देखना होगा कि यहां आप सर करवा रहे हैं PS इक्वल टू PA, यहां आपने बोल दिया PS इक्वल टू P नॉट A। ये कैसे आ गया? ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि फिर सॉल्वेंट प्योर स्टेट में हो गया, और अगर सॉल्वेंट प्योर स्टेट में हो गया तो हम फिर बोलेंगे PS इक्वल टू P नॉट A। तो स्टूडेंट्स यहां पे व्हेन नो सॉल्यूट इज देयर, ये कंडीशन कब होगी? जब XB विल बी इक्वल टू 0, तो उस समय ये जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा इन दी सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। ये अज्यूम किया जा सकता है। यहां फोकस कीजिएगा, PA इक्वल्स टू P नॉट A कैसे अज्यूम कर लिया गया? काई बी XB मतलब जीरो, XB जीरो, नो सॉल्यूट, नो सॉल्यूट मींस सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में, और अगर सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है इट मींस दैट PS विल बी इक्वल टू P नॉट A। इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहां पे ये किया PS इक्वल टू P नॉट A। ये जो स्टूडेंट्स यहां पे वैल्यू है देखिएगा किसकी, पुट द वैल्यू ऑफ PS, यहां से PS का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और स्टूडेंट हमारी ये है इक्वेशन नंबर 2। तो PS क्या वैल्यू है PS की, यहां देखिएगा PS का वैल्यू क्या है P नॉट A। तो आपको यहां पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। PS का वैल्यू अगर P नॉट A है तो हमें मिल जाएगा P नॉट A इक्वल्स टू K। यहां पे फिर से इफ PS इक्वल्स टू P नॉट A, तो PS का ये जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू P नॉट A, हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, तो PS की प्लेस पे यहां पे आ जाएगा P नॉट A इक्वल्स टू K। तो हमें रिलेशन ये मिल जाएगी P नॉट A इक्वल्स टू K। अब हम क्या करेंगे, ये जो K का वैल्यू है यहां पे K इक्वल्स टू P नॉट A, ये जो स्टूडेंट K का वैल्यू है हमारा यहाँ पे, ये जो K का वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, PS इक्वल टू K इंटू XA। तो यहाँ पे PS है इक्वल्स टू K का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, K का वैल्यू यहाँ पे क्या है P नॉट A। तो फिर यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, PS इक्वल्स टू K का वैल्यू P नॉट A इंटू काई A, और फाइनली हमें ये आंसर मिलेगा PS इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A। ये रिलेशन हमें कैसे मिली, हमने यहां से P नॉट A, यहां से हमने K का वैल्यू जो था वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनली हमें ये मिल गया, ये PS इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A। स्टूडेंट दिस इज एन अदर स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं लेकिन मैं यहां से उसको रीड करने वाला हूं। ये दिस इज एनदर स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो क्या स्टेटमेंट है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ vapor pressure of the pure solvent and mole fraction of the solvent. I repeat, vapor pressure of a solution containing non-volatile solute at a constant temperature is equal to product of vapor pressure of solvent in the pure state and mole fraction of the solvent.
इस तरह स्टूडेंट ये हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हुआ, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसको एक और डिफरेंट वे में किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, वो डिफरेंट वे क्या हो सकता है जो आगे भी आएगा। पी नॉट ए वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, लेकिन जब हम इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसको एक बार फिर से देखिएगा, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, आई ऐड सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन दैट प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर कीजिए और प्योर सॉल्वेंट का पहले वेपर प्रेशर हमने मेजर कर लेना है। देन वंस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बनेगा, आप देखेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से कम होगा, जाने कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सो वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ग्रेटर है किससे, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, कितना वेपर प्रेशर लोअर कर गया जब आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया। तो आपको कैसे पता चलेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस। जब आप वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट उसमें से माइनस करते हो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको मिलेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब आपको पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो फिर से पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट ए का वैल्यू ग्रेटर किससे, पी एस से। अगर अब आपको यह फाइंड आउट करना है कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज करा है प्योर सॉल्वेंट का जब उसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो पी नॉट ए माइनस पी एस। ये जो स्टूडेंट रिलेशन हमारा होगा आगे, बहुत काम का रिलेशन है ये, दैट इज द लोअरिंग। लोअरिंग मतलब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी एस ये हमको इंडिकेट करता है कि कितना वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट फाइनली यहां पे देखिएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट ए। जब आप पी नॉट ए माइनस पी एस जाने की लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब आप उसको डिवाइड करोगे पी नॉट ए से, तो क्या स्टेटमेंट बनता है, पी नॉट ए माइनस पी एस विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट ए। अब इस पूरी रिलेशन को आप बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सिर्फ क्या है, पी ए माइनस पी एस, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन रिलेशन टू, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और स्टूडेंट याद रखना, दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। याद रखो, relative lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute। तो मेरी तरफ लास्ट में ये कैसे हमने कहा कि relative lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute। स्टूडेंट सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, हम प्योर सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज करता जाएगा, वेपर प्रेशर उतना लो होता जाएगा। इट मीन्स दैट कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है कि हमने कितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of the solute। I hope you will revise it repeatedly। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और आप इस कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये था राउल्ट्स लॉ। अर्लियर हमने किया था राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute, and this is Raoult's law for a solution containing non-volatile solute। Thank you।